Hello class 7th, welcome once again on our teaching program. Students, in today's topic we are going to conclude the chapter Natural Vegetation and Wildlife, जो कि आपका FA2 का chapter है. In today's topic we will discuss about the wildlife in India on the page number 153. So let's start the topic. The wildlife in our country is our national heritage and asset. India has a rich and varied wildlife. Various kinds of wild animals and birds are found in the Indian forest. They are elephants, rhinoceros, tigers, lion, etc. इंडिया में बच्चों जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी सारे वैरायटीज़ के पाए जाते हैं और उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है. खास तरह के जो एलिफेंट्स हैं, राइनोसोरस हैं, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. लॉयंस ऑफ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है, जो गिर अभयारण्य है, वहाँ पे जो लॉयंस पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड फेमस है बच्चों. A large variety of deer and antelopes, monkeys and langurs, wolves, jackals and hyenas are found in hills. पहाड़ियों पर जो है कई सारे प्रकार के जो लंगूर हैं, monkeys हैं, hyenas हैं, antelopes हैं, ये सब पाए जाते हैं. We have at present about 350 यानी 350 प्रकार की स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास हैं, यानी जंगली जानवर हमारे पास हैं. We also have an average large variety of birds, about 12,000 प्रकार की हमारे पास birds हैं. Among such birds, the peacock, which has been declared as our national bird. Thousands of tourists visit India to watch these birds and animals in their natural state. Wild animals and birds not only add beauty to our country but also help in the preservation of ecological balance. They produce beautiful notes and tones. They inspire many poets and painters and adorn many zoos. जो ये पशु पक्षी हैं, जो ये जीव जंतु हैं बच्चों, ये हमारे नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं. जैसे अगर चिड़िया ना हो तो कितने सारे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे कि हमारा जीना दुभर हो जाएगा, किसान अपनी फसलें जो है नहीं उगा पाएंगे. और तो और इन पशु पक्षियों से प्रेरित होकर के, इनसे इंस्पायर होकर के पोइट्स ने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कई सारी जो है रचनाएं की हैं. A large number of rare birds and animals have been extinct due to reckless destruction of forests and use of guns by the greedy hunters. As a result, some beautiful species like cheetah, rhinoceros, musk deer, Indian bustard are in the danger of total extinction. कुछ लालची लोगों के नाते जो है बच्चों क्या हो रहा है कि जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु, उनको मारा जा रहा है, जिसमें मस्क डियर है, लायंस है, टाइगर्स है, राइनोसोरस है, इन सबकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है. और इनको जो है मौत के घाट उतार करके इनके सींग वगैरह को जो है लालची लोग काट करके ले जाते हैं, जो कि हमारे लिए खतरा है. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा जो वन्य जीव है वो नष्ट हो जाएगा. In order to save wildlife, our government has taken several steps. The government has taken up about 103 national parks. In these parks, wildlife, natural vegetation and natural beauty are preserved. हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं, कई सारे मेजर्स किए हैं. इसमें नेशनल पार्क्स हैं जिसकी संख्या 103 है. टाइगर्स आर प्रिजर्व्ड इन द कॉर्बेट पार्क. देयर इज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर राइनोसोरस इज आसाम. राइनोसोरस के लिए आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है. वो जीके में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एंड फॉर व्हाट पर्पस. किस लिए इसका निर्माण किया गया है और कहाँ पर यह स्थित है. There are also wildlife and bird sanctuaries. 535 bird sanctuaries हैं जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है. Where both rare birds and animals live and roam about without any fear of being hunted. जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं और खुले मन से बिना किसी डर के वो घूमते रहते हैं. There is a large bird sanctuary at Bharatpur. 24 zoological parks have been set up by the government in different parts of India to preserve wildlife. 24 zoological parks बनाए गए हैं ताकि इन जीव जंतु की सुरक्षा की जा सके. The Board of Wildlife advises the government so as to steps it should take to preserve wildlife. A wildlife week is observed year to lay stress on the need of the preserving wildlife. और हर साल बच्चों एक संगोष्ठी होती है, सेमिनार होता है, इस पर चर्चा होती है कि किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके. Tigers and rhinoceros are some endangered species of wildlife in India. टाइगर्स और राइनोसोरस जो है
वो इंडेंजर्ड है, यानी ऐसी स्पीशीज़ है कि अगर इनकी देखभाल नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये खत्म हो जाएंगे। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए हैं। वो क्या प्रोग्राम्स हम देखेंगे। सो फार द स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। टाइगर प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट हैज प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। About 30 tiger reserves have been set up in different parts of India, where special care is being taken for all-round protection and betterment of tigers. टाइगर प्रोजेक्ट जो है बच्चों वो बनाया गया है और इसमें टाइगर्स की देखभाल, उनका मेडिकल चेकअप है, उनकी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट उनको मुहैया कराती ताकि इनकी जो स्पीशीज़ है, इनकी प्रजाति है, इसको बचाया जा सके। लाइकवाइज इसी तरह से राइनो प्रोजेक्ट भी है जो इम्प्लीमेंट किया गया है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऑफ आसाम। बिसाइड द गवर्नमेंट इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट के साथ साथ ही हमारी ड्यूटी भी है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें, उसको सुरक्षित रखें, उसको संरक्षित करें। वी शुड अवॉइड रेकलेस हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, indiscriminate felling of trees and clearing of forest should be checked. We must protect our wildlife, which is our national wealth. हमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारा वाइल्ड जीवन है, उसको बचाना होगा बच्चों। तभी जो हम अपने जो नेशनल, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरी में अंतर बताया गया। थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको कि नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है। इट इज़ एन रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग वेजिटेशन, नेचुरल ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेशनल पार्क होता है उसमें एक एरिया रिजर्व कर दिया जाता है और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। नेशनल पार्क इज क्वाइट वाइड इन एरिया। नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा होता है। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी इज अ रिजर्व नेचुरल एरिया मेड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो सेंचुरी होती है वहाँ पे जो प्रजाति खतरे में है उसको वहाँ पे रखा जाता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है और उनकी ब्रीडिंग हो सके ताकि उनका जो वंश है और आगे बढ़ सके। इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं। सेंचुरी सेट अप फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। सेंचुरी का एक अपना मकसद होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका रिप्रोडक्शन हो सके, उनकी ब्रीडिंग हो सके, वो आगे अपने वंश को चला सके। सेंचुरी इज डेवलप्ड इन अ लिमिटेड एरिया। सेंचुरी जो है एक छोटे से एरिया में बनाई जाती है, उसका एरिया लिमिटेड होता है और वहीं नेशनल पार्क जो है काफ़ी बड़े एरिया में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज topic students. We have completed, and what you have to do, you have to do the exercise in book and after this on Monday onwards we will start the new chapter and I will provide the question answer of this lesson on the same day. So thank you for watching and listening students. Stay home, stay safe.